Hello and welcome back, dear students. Welcome to this new video on applications of calculus in kinematics. In the last video, we discussed about the calculus concept in kinematics, wherein we introduced the concept where to use differentiation, where to use integration, and what are the possible relations in kinematics. In the last video, we discussed about that there are 30 possible combinations in kinematics, wherein the relation can be xt, like the position time relation, vt velocity time relation, et acceleration time relation, and many more. और जिसमें हमने ये चीज सीख ली कि अगर सपोज हमारे पास xt रिलेशन है और हम उससे vt कैसे निकाल सकते हैं, और अगर हमारे पास vt है उससे xt कैसे निकाल सकते हैं, और अगर हमारे पास at है उससे xt कैसे निकाल सकते हैं. वी डिस्कस्ड इवन दो अगर वेलोसिटी फंक्शन है x का और अगर हमें वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ t निकालना है तो हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं. मोर ओवर वी ऑल्सो स्टडीड दिस कॉन्सेप्ट एज वेल, द स्पेशल केस इन काइनेमैटिक्स, दैट इज कि अगर हमारे पास एक्सेलरेशन इज द फंक्शन ऑफ x, like a is the function of x, how to derive the acceleration as the function of t. You can just check that video. In that particular video I discussed and suggested some key points in that particular video. Now in this particular video I have picked and chose some questions which are very important, and it will just boost your concept in calculus, how to use calculus over here in kinematics. So we do have here the very first question. बेसिक सा क्वेश्चन है, दैट इज सपोज अगर मेरे पास xt रिलेशन है और अगर मेरे से vx रिलेशन पूछा जाए. मोर और फॉर दिस फर्स्ट, डियर स्टूडेंट्स, वी आर सपोज्ड टू नो दिस थिंग whenever we are supposed to sketch the trajectory of an object. ट्रेजेक्ट्री कॉन्सेप्ट के लिए मैंने क्लास में ये चीज बताई आपको. हमारे पास हमेशा y और x के बीच में रिलेशन आना चाहिए, और t अगर है we need to eliminate it. So over here we have the very first question, that is कि मेरे पास xt रिलेशन है और मुझसे vx रिलेशन पूछा गया है. तो देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आई विल जस्ट राइट, मुझसे चाहिए वेलोसिटी और x, तो मैं वेलोसिटी लिख सकता हूं, दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x, सो दैट इज dx डिवाइडेड बाय dt. सो आई एम गोइंग टू गेट 2t प्लस 2. तो मेरे पास वेलोसिटी टाइम रिलेशन आया. सो दिस इज माई vt रिलेशन. बट अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में मेरे से vt नहीं पूछा है, मेरे से vx पूछा है. सो दिस मीन्स वट एवर रिलेशन आई विल बी गोइंग टू गेट, देयर शुड बी नो t इन्वॉल्व इन इट. सो मैं यहाँ से t को एलिमिनेट कर सकता हूँ. आई कैन राइट इट एज v माइनस 2 इक्वल्स टू 2t, and I can write t as v minus 2 divided by 2. So what is the benefit that I am going to get from this particular equation? I eliminated what we call as the t, and I will just substitute, just substitute this t over here in the x. So I will get x as equal to, I will just substitute it over here, x as equal to t के बदले में लिख दूंगा v minus 2 divided by 2 का whole square plus 2. Again I am going to get t को मैं दोबारा लिख दूं v minus 2 divided by 2 and plus 1. So इसको further भी solve किया जा सकता है, depends on how the questions are being asked. So this is my desired, this is the desired relation for vx relation, right? So this is my vx relation. So इस question से हम सीख क्या गए कि whatever is being asked to me, I can have accordingly frame it. Now let's move to the next question. The question is over here is, suppose if I have the velocity of particle is given as v is equal to x square plus 1. अब यहाँ पे अगर यही क्वेश्चन होता v equal to t square plus 1, find acceleration at t equal to 1 second. बट यहाँ पे v is equal to x square plus 1. So यहाँ पे अगर आप देखेंगे dear students, if you will just observe this, I have here v as the function of x. और जब भी v एज अ फंक्शन ऑफ x होता है, एक्सेलरेशन की फॉर्मूला आती है v dv डिवाइडेड बाय dx. इसको लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस भी किया था. लेट्स से मेरे पास एक्सेलरेशन है dv डिवाइडेड बाय dt, इसको दोनों साइड dx से डिवाइड भी कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए. dx बाय dt इज v, बचा क्या वहां पे dv डिवाइडेड बाय dx. सिंपल.
तो यहाँ पे मेरे पास रिलेशन आया a इज इक्वल टू डी वी डिवाइडेड बाई डी एक्स. सो अकॉर्डिंगली नाउ आई कैन फ्रेम द एक्सेलरेशन एज v की वैल्यू यहाँ से पुट कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1. सो आई एम गोइंग टू राइट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, दैट इज 2x. सो आई एम गोइंग टू गेट एक्सेलरेशन आज, अगर वेक्टर फॉर्म में पूछा है 2x क्यूब, मल्टीप्लाई कर दो इसको प्लस 2x एट x इक्वल्स टू 1 मीटर में एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाइड विद 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1. एक्सेलरेशन इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. नोटेबल पॉइंट क्या था, वी हैव टू चेक वेलोसिटी किसका फंक्शन है. अगर वेलोसिटी t का फंक्शन है तो मैं लिखता a इज इक्वल टू dv डिवाइडेड बाय dt, बट यहाँ पे वेलोसिटी किसका फंक्शन है, x का. सो अकॉर्डिंगली आई फ्रेम द आंसर लाइक दिस. Now let's move to the next question. The question is very interesting. The question here in suggests something that is going to build up our concept. That is कि ये हमारे से क्या पूछ रहा है. Let's say x is the position. ठीक है ना, x is the position and this is given as this is like this. x is equal to a e minus alpha t plus b e beta t. ये सारे नीट के हमारे एग्जाम में आए हुए सवाल है. So they are very important just for the concept building. अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि बताइए अगर किसी पार्टिकल का पोजीशन कोऑर्डिनेट ऐसा है, टाइम के साथ इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, टाइम के साथ इसकी वेलोसिटी घटेगी या कांस्टेंट रहेगी, या इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है. तो फॉर दिस आई एम हैविंग x कोऑर्डिनेट. इन ऑर्डर टू गेट द वेलोसिटी आई एम सपोज्ड टू डिफरेंशिएट इट. सो आई विल गेट वेलोसिटी एज dx divided by dt. तो यहाँ से मुझे रिलेशन पता चल जाएगा whether it is going to increase, decrease and whatever is going to happen. So मैं लिखूंगा v equals to d divided by dt of x के बदले ये वैल्यू पुट कर दीजिए a e minus alpha t plus b e beta t. तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, यू कैन गो डिफरेंशिएट बाय डिफरेंशिएशन बाय पार्ट्स. तो मैं इसकी पहले डिफरेंशिएशन करूंगा फिर इसकी डिफरेंशिएशन करूंगा. तो इसकी जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो आई एम गोइंग टू गेट a as common. a alpha b beta they are constant. Do remember this, a alpha b beta they are constant. a बाहर आ जाएगा, e raised power x की डिफरेंशिएशन हम जानते हैं e raised power x ही है, that is minus alpha t. बट अब जो e raised power x होता है उसके पहले हम फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, दैट इज e raised power x. बट जो x है ना ऊपर, उसकी भी इंटरनल डिफरेंशिएशन करेंगे. तो आप बोलेंगे हमने तो देखा नहीं, एक्चुअली में x की विद रिस्पेक्ट x 1 आती है, इसलिए हम लिखते नहीं है, अदरवाइज वी डिफरेंशिएट दैट एज वेल. तो माइनस अल्फा टी की कितनी हो जाएगी डिफरेंशिएशन, माइनस अल्फा, राइट, टी की विद रिस्पेक्ट टू टी हो जाएगी 1. अकॉर्डिंगली मैं प्लस लिख दूं, यहाँ पे कितना आ जाएगा बी ई बीटा टी एज सच, क्योंकि इसकी डिफरेंशिएशन b बाहर आ जाएगा, e रेज पर बीटा टी की e रेज पर बीटा टी होगी. अब बीटा टी की इंटरनल डिफरेंशिएशन वो कितनी हो जाएगी, वो बीटा आ जाएगी. सो दिस इज वेलोसिटी. सो अगर आप गौर से देखेंगे व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, आई एम गोइंग टू गेट माइनस अल्फा a e रेज पावर माइनस अल्फा t प्लस बीटा b e रेज पावर बीटा t. नाउ इम्पोर्टेंट क्या है, अब ये क्या बोल रहा है कि हमें टाइम के रिलेशन के साथ बताना है. बच्चे क्या सोचते हैं कि टाइम अगर बढ़ाएंगे ये घटेगा, ये बढ़ेगा, तो जितना ये घट रहा है उतना बढ़ रहा, कांस्टेंट रहेगा. नो डियर, हियर वी आर सपोज्ड टू अंडरस्टैंड वन ऑफ द बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ओवर हियर. अगर मैं t की वैल्यू को इंक्रीज कर दूं, सो दिस वैल्यू, दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज गोइंग टू डिक्रीज. और जब मैं t की वैल्यू इंक्रीज कर दूं, दिस वैल्यू इज गोइंग टू इंक्रीज. अब इससे क्या होगा, ये वैल्यू बढ़ रही है, लगातार बढ़ती जा रही है, ये वैल्यू लगातार घटती जा रही है. इससे क्या होगा, ओवरऑल जो डिफरेंस है वो बढ़ता जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव एन एग्जाम्पल फॉर दिस. सपोज इफ आई एम टेकिंग -2 और आई एम टेकिंग 10, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, जैसे हमारे यहाँ पे आ रहा है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव. अब मैंने t को बढ़ाया, ये वैल्यू घटती गई मतलब दिस वैल्यू इज बिकमिंग -3, और ये वैल्यू बढ़ती गई. लेट्स से ये वैल्यू होगी
इमेजिन कर लेते हैं 11। अब पहले अगर आप -2 और 10 में गैप देखेंगे और -3 और 11 में गैप देखेंगे, इट इज गोइंग टू इंक्रीज, डिफरेंस बढ़ रहा है। यहाँ पे डिफरेंस कम, आप नंबर लाइन से भी देख सकते हैं, -2 और 10 के बीच में और -3 और 11 के बीच में ज्यादा गैप है। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इफ यू इंक्रीज टी, ये वैल्यू घटेगी, इफ यू इंक्रीज टी, ये वैल्यू बढ़ेगी। तो ओवरऑल जो डिफरेंस है वो बढ़ता 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 जाएगा, जिसकी वजह से वेलोसिटी की वैल्यू भी बढ़ेगी। सो आई विल से वेलोसिटी विल इंक्रीज विद टाइम। ठीक है ना, ये नहीं सोचना ये घट रहा है ये बढ़ रहा है कांस्टेंट रहेगा, नो, क्योंकि यहाँ पे वी टी का फंक्शन है। नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। नीट 2025 में सिमिलर टाइप क्वेश्चन आया था। मेरे पास क्वेश्चन है, अगर टी है like this way, now we are supposed to find retardation। देखिए डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने बात करी थी नेगेटिव एक्सेलरेशन हमेशा रिटार्डेशन हो, ऐसा जरूरी नहीं है। नेगेटिव एक्सेलरेशन हमेशा रिटार्डेशन हो, ऐसा जरूरी नहीं है। रिटार्डेशन मींस इट इज जस्ट लाइक स्पीडिंग डाउन। वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी कभी स्पीड डाउन कर सकता है, वो नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कभी स्पीड डाउन कर सकता है। इन्हें स्पीड डाउन कर सकता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी बिहेव कर सकता है रिटार्डेशन की तरह। तो यहाँ पे मेरे से टी अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस गामा, मुझसे रिटार्डेशन पूछा है, 4 ऑप्शंस आर गिवन, माइनस प्लस का खेल है यहाँ पे। देखिए क्या, लेट्स से इफ आई विल राइट dt डिवाइडेड बाय dx, यू विल बी आस्किंग ऐसा तो कोई रिलेशन ही नहीं है, ये 1 बाय वेलोसिटी, v क्या होता है dx बाय dt, तो 1 बाय v क्या आ जाएगा dt बाय dx। तो अगर मैं इसको एक बार डिफरेंशिएशन करूंगा तो आई एम गोइंग टू गेट 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। What is dt by dx? It is actually 1 divided by v। कैसे? हम जानते हैं v की वैल्यू जो होती है वो dx डिवाइडेड बाई dt होती है, तो 1 by v किसके बराबर आ जाएगा dx डिवाइडेड बाई dt। सो दिस इज 1 by v एंड दैट इज इक्वल टू 2 अल्फा x प्लस बीटा। तो मैं लिख सकता हूँ v एज इक्वल टू 2 अल्फा x प्लस बीटा, इनवर्स कर दो। ठीक है, सो मेरे पास v की वैल्यू आ गई। नाउ मुझसे रिटार्डेशन पूछा है, काइंड ऑफ एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे v किसका फंक्शन है, x का या t का? v ओवर हियर इज द फंक्शन ऑफ x। तो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास v फंक्शन ऑफ x हो, v फंक्शन ऑफ x हो, तो मेरे पास जो फॉर्मूला लगता है दैट इज a v d, a इज इक्वल टू यानी एक्सेलरेशन v dv बाई dx। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी मेरे पास जो फंक्शन है वेलोसिटी का वो x का फंक्शन है। तो अगर मुझसे एक्सेलरेशन पूछा जाए तो मैं एक्सेलरेशन को लिख सकता हूँ v dv डिवाइडेड बाई dx। a को मैं लिख सकता हूँ v के बदले में लिख दूं 2 अल्फा x प्लस बीटा टू द पावर -1 मल्टीप्लाइडेड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ v की वैल्यू दोबारा इसकी डिफरेंशिएशन कर देंगे प्लस बीटा टू द पावर -1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 अल्फा x प्लस बीटा टू द पावर -1 मल्टीप्लाइडेड बाय, अब यहाँ पे जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे आई एम गोइंग टू गेट ओवर हियर एज x रेज़ पावर n की पावर। सो -1 को नीचे ले आइए, -1 2 अल्फा x प्लस बीटा टू द पावर -1 दैट इज -2। नाउ इम्पॉर्टेंट क्या है, मैंने सिर्फ इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन करी है। नाउ जो इसके अंदर है इंटरनल डिफरेंशिएशन, बीटा तो कांस्टेंट है, बीटा की तो 0 आ जाएगी, 2 अल्फा x की कितनी हो जाएगी दैट इज 2 अल्फा। ठीक है, तो ये मेरे पास एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको -1 को 2 अल्फा के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, -2 अल्फा। नाउ ये टर्म किसके बराबर है, ये टर्म किसके बराबर है, मेरे पास ऐसा रिलेशन दिया है, आई हैव टू बी ऑप्शन सेंट्रिक, जैसा ऑप्शन पूछा आई हैव टू मॉडिफाई माय आंसर्स अकॉर्डिंग टू दिस। तो इसके बदले में लिख दूं वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी किसके बराबर है, इसके बराबर, -1 को ऑलरेडी बाहर निकाल चुका हूं मैं। इसके बदले भी लिख सकता हूं मैं वेलोसिटी, ये टर्म किसके बराबर है, वेलोसिटी का स्क्वायर। नाउ कैसे, देखिए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 अल्फा x प्लस बीटा रेज्ड पावर -1 that is velocity का square। So I am going to get this, so a is equal to -2 alpha v cube। तो माइनस ऑलरेडी लिया गया है बिकॉज हमसे रिटार्डेशन पूछा है, तो हम इस ऑप्शन पे नहीं जाएंगे बिकॉज वी आर बीइंग आस्क्ड रिटार्डेशन, तो इसका आंसर ये होगा। ना इसको समझ लेते हैं कि ये कहाँ से आया, माइनस के साथ मैं इसलिए नहीं जाऊंगा बिकॉज वी आर सपोज टू फाइंड रिटार्डेशन, मेरे से एक्सेलरेशन पूछता तो मैं ये आंसर
सेकंड आंसर टिक कर लेता, बट रिटार्डेशन लिया है, दैट मीन्स नेगेटिव साइन हैज ऑलरेडी बीन टेकन। इसको देख लेना, इस स्टेप को मैं इसको लिख देता हूँ 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा टू द पावर -1 स्क्वायर, पावर्स एंड पावर्स गेट मल्टीप्लाइड। ये पूरी टर्म किसके बराबर है? ये पूरी टर्म v के बराबर है, इधर से देख लीजिए, ये पूरी टर्म किसके बराबर? v के बराबर, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? v का स्क्वायर। सो आई एम गोइंग टू गेट v स्क्वायर ओवर हियर। सो जब मैंने v स्क्वायर लिखा, बेसिस आर सेम, पावर्स गेट एडेड, बेसिक रूल है, so I got this. Why I ignored second option? Because we are being asked retardation, so I have already taken negative sign. I am going with this option. Okay, now this is the second question. One more question based on this concept. हमारे पास दिया गया है कि हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका x कोऑर्डिनेट ऐसा दिया गया है, y कोऑर्डिनेट ऐसा दिया गया है, z कोऑर्डिनेट है नहीं। इसका मतलब इसने जैसे 2 डायमेंशनल मोशन दिखा रखा है, स्ट्रेट लाइन दिया नहीं है, आगे हम देख लेंगे कैसा गया है, वी हैव टू चेक इट। तो दिस मीन्स अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूं, ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो दिस इज एक्चुअली x में इतना गया है, y में इतना गया है। सो आई विल राइट, एक्चुअली अगर मैं इसका पोजीशन वेक्टर लिख दूं, सो दिस इज at स्क्वायर i कैप प्लस bt स्क्वायर j कैप, ये इसका पोजीशन वेक्टर है। और अगर हमसे वेलोसिटी पूछा है, वी नो वेलोसिटी इज एक्चुअली द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे वेलोसिटी, पहले आई एम गोइंग टू फाइंड वेलोसिटी as equal to dr divided by dt, so that is equal to 2at I cap plus 2bt j cap। तो ये मेरे पास वेलोसिटी आया। अगर मुझसे देखो आगे मुझे एंगल निकालना है, तो मुझे पता है कि मैग्नीट्यूड का काम आएगा, तो वेलोसिटी का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं, सो आई एम गोइंग टू राइट 2at स्क्वायर plus 2bt square, right? So if I will take this, I'm going to write this equation as 4a square t square plus 4b square t square, right? 4t square को कॉमन निकालेंगे तो उसको मैं लिख सकता हूँ 2t का होल स्क्वायर, अंदर क्या बचा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सिर्फ इसका स्क्वायर रूट कैंसिल आउट कर देंगे, तो 2t बाहर आ जाएगा, स्पीड का वैल्यू हो जाएगा 2t अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये मेरे पास स्पीड भी आ गया। अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे? एक्सेलरेशन के लिए आई विल डिफरेंशिएट दिस वेलोसिटी, सो एक्सेलरेशन ओवर हियर इज dv डिवाइडेड बाय dt, तो वो कितना आ जाएगा? 2a t की विद रिस्पेक्टिव 1 प्लस, चलो आई कैप 2b j कैप। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड पूछा जाए, सो दैट इज ये, इसको भी हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, ये आ जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ 2a होल स्क्वायर प्लस 2b होल स्क्वायर, 2 को कॉमन निकाल लीजिए, स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लीजिए, तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट 2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सिंपल कैलकुलेशन है ना। उसके बाद जो मेरे से पूछा है, वो पूछा है एंगल बिटवीन v एंड a। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जहां पे भी दो वेक्टर्स के बीच में, और वो वेक्टोरिकल फॉर्म में यानी कंपोनेंट्स आई कैप जे कैप में हो, और हमसे पूछा जाएगा इनके बीच में एंगल निकाल लीजिए, तो बेस्ट वे इज टू यूज व्हाट वी कॉल एज द डॉट प्रोडक्ट। तो मैं लिख सकता हूँ cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट v। आई गेस लास्ट वीडियो में भी ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, तो आई विल जस्ट a और v, है ना, लास्ट वीडियो में आई थिंक, हाँ ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ है। डॉट प्रोडक्ट कर देंगे 2a आई कैप डॉट 2at j कैप, तो ये आई कैप, तो ये आ जाएगा हमारा 4a स्क्वायर t प्लस 4b स्क्वायर t। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय इन दोनों का मैग्नीट्यूड आप देखेंगे, ये आ जाएगा हमारा 4t a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। डायरेक्टली इन दोनों का लिख रहा हूं मैं, 2 इंटू 2t दैट्स 4t, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से 4 अगर हम ऊपर कॉमन भी निकालेंगे,
ये 4 कैंसिल आउट होता दिख रहा है, टी और टी कैंसिल आउट होता दिख रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर पूरा कैंसिल आउट होता दिख रहा है। तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारी 0। तो अगर थीटा इज 0 तो इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जब सेम डायरेक्शन में हो तो पाथ हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होगा। अगर 180 होता तब भी स्ट्रेट लाइन अपोजिट डायरेक्शन में। लास्ट वीडियो में मैंने डिटेल में इसको सॉल्व किया हुआ है कि ये कैसे आया, आप चेक कर सकते हैं। Now we have one more question, very interesting question and very important question from what do you call as the motion in plane में भी कभी कभी ये पूछा जाता है। मेरे पास पोजीशन वेक्टर डायरेक्टली दिया हुआ है, या तो मैं डायरेक्टली लिखता x इज इक्वल टू आर नॉट साइन ओमेगा टी आई कैप एंड y इज इक्वल टू आर नॉट कॉस ओमेगा टी जे कैप, बट मैंने इसको पोजीशन वेक्टर बना दिया इन ऑर्डर टू जस्ट सेव योर टाइम। तो अगर मुझसे वेलोसिटी पूछा है तो वेलोसिटी किसके बराबर होगा, वो होगा डी आर डिवाइडेड बाई डी टी। तो वो किसके बराबर, इसकी डिफरेंशिएशन कर दीजिए, आर नॉट साइन की कितनी होती है कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा की इंटरनल डिफरेंशिएशन आ जाएगी आई कैप, क्योंकि मैं वेलोसिटी निकाल रहा हूँ, माइनस माइनस इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि चलो लिख देते हैं एक बार, प्लस आर नॉट साइन कॉस की कितनी हो जाएगी माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी की इंटरनल डिफरेंशिएशन दैट इज ओमेगा जे कैप। तो अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी लिख दूं तो वेलोसिटी आई एम गोइंग टू गेट आर नॉट, ऐसे लिख देते हैं, आर नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी आई कैप माइनस आर नॉट साइन ओमेगा टी, इसके साथ भी ओमेगा लिख दो जे कैप। सो दिस इज द वेलोसिटी। सो अगर मुझसे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछा है, चलो एक्सेलरेशन अगर मेरे से पूछा है, एक्सेलरेशन भी मैं निकाल सकता हूँ। पहले वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ, वो क्यों निकाल रहे हैं अभी आपको समझ आ जाएगा, वो सारे क्वेश्चंस का आंसर दे, आर नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी होल स्क्वायर प्लस, क्योंकि मैग्नीट्यूड हियर इन आर यू कैन राइट माइनस, फिर स्क्वायर ही लेंगे तो तब भी पॉजिटिव ही आना है, आर नॉट साइन ओमेगा टी जे कैप। मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता, नेगेटिव ओनली सिग्निफाइज द डायरेक्शन सॉरी। अब अगर मैं यहाँ पे आर नॉट ओमेगा स्क्वायर को कॉमन निकालूं, ऐसे कॉमन, अंदर क्या बचा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, आप जानते हो वो 1 आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है आर नॉट ओमेगा, ये रो नहीं है, इट इज आर नॉट मल्टीप्लाइड विद ओमेगा। व्हाई आई डिड दिस इफ इवन दो आई वाज नॉट बीइंग आस्क्ड अबाउट द स्पीड। देखिए यहाँ पे जब आप इस चीज को देखेंगे, इस पर्टिकुलर चीज में आपको क्या मिल रहा है, आर नॉट ओमेगा, इज दिस द, यहाँ पे ऑलरेडी इट वाज द फंक्शन ऑफ टी। यहाँ पे मैं एक चीज ऑब्जर्व क्या कर रहा हूँ कि स्पीड जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी, इसका मतलब यहाँ पे टी नहीं है, दैट मीन्स जो स्पीड है वो क्या है, वो कांस्टेंट है। वो स्पीड कैसी है, वो कांस्टेंट है। तो स्पीड कांस्टेंट होने का मतलब अगर मैं देखूं, इसका मतलब ए टी यानी ए टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज जीरो, वो है ही नहीं। अब अगर मेरा टोटल एक्सेलरेशन भी जीरो आए, इसका मतलब ए रेडियल भी जीरो है। दिस पार्टिकल हैज टू बी देन एट मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब मूव कर रहा है, क्योंकि मेरे पास वेलोसिटी तो ये है। अब ध्यान से समझना आपको कि जब मैं इसको एक्सेलरेशन निकालूंगा, एक्सेलरेशन इज डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, क्या ये एक्सेलरेशन जीरो आया, नहीं, सो आई एम गोइंग टू गेट, दोबारा इसकी डिफरेंशिएशन करने पे आई एम नॉट गोइंग टू गेट एक्सेलरेशन एज जीरो, बट एटी तो जीरो है। इसका मतलब अगर नेट एक्सेलरेशन मेरा जीरो नहीं है, बट एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन स्पीड वो जीरो है, क्योंकि मेरे पास कांस्टेंट स्पीड आ रही है। स्पीड कांस्टेंट है बट एक्सेलरेशन स्टिल प्रेजेंट है, इसका मतलब वहां पे ए आर रेडियल एक्सेलरेशन नॉन जीरो, वो प्रेजेंट है। अगर ए आर नॉन जीरो यानी वो प्रेजेंट है, वो इसको कैसे घुमा रहा है सर्कुलर मोशन में, उसका काम क्या होता है, हर बार इसको रोटेशन करा देना। वो मैं डायरेक्टली बाद में निकाल भी सकता हूँ, वी और ए के बीच में एंगल। तो ये पार्टिकल कैसे मूव करेगा सर्कुलर मोशन में, अगर ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो हम जानते हैं एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये होगी और वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होती है। तो इसका मतलब अगर मेरे से
v एंड फोर थर्ड पॉइंट, v एंड a के बीच में एंगल पूछा है, वो कितना आ जाएगा, वो 90 डिग्री आ जाएगा, दैट इज डायरेक्टली 90। नाउ नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन इज a और पोजीशन वेक्टर के बीच में एंगल। देखिए ये तो इसका सेंटर है, एक्सेलरेशन तो ऐसे है, मैं यहाँ पे भी एक्सेलरेशन को ऐसे दिखा सकता हूँ क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे ऐसे मिलेगी। अगर एक्सेलरेशन ऐसे, particle is rotating about this origin, this is origin, that is the center, particle is rotating about this origin, मतलब इसके इर्द गिर्द घूम रहा है। particle is rotating about this, if I had to draw the position vector, position vector कहाँ से draw करते हैं हम, ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट की तरफ, ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है और आर्क इधर की तरफ दिखाया जाएगा, यानी पोजीशन वेक्टर ये a है। सो इसका मतलब a एंड r के बीच में कितना एंगल है, दैट इज 180 डिग्री, क्योंकि a इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर, पोजीशन वेक्टर इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब लाइक फ्रॉम द ओरिजिन, क्योंकि इसके अबाउट ही घूम रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज v एंड r के बीच में भी हमारा v एंड r के बीच में भी एंगल हमारा 90 डिग्री। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर आप फिर दोबारा डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे, वहां से भी एंगल निकाल सकते हो, पूरा सॉल्व कर सकते हैं। एंड मोर और मैंने इसको सर्कुलर ही क्यों दिया, आप जब इसको सॉल्व करेंगे यू आर गोइंग टू गेट द पाथ विल बी द इक्वेशन विल बी सर्कुलर। तो यहाँ से हम ये इस क्वेश्चन को एड्रेस कर लेते हैं। नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज फाइंड एक्सेलरेशन इन ऑल द केसेस। मेरे पास ये 4 केसेस है, चारों केसेस को अलग अलग से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले में वेलोसिटी किसका फंक्शन है, x का, तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, v dv डिवाइडेड बाय dx। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v की वैल्यू अल्फा रूट x d डिवाइडेड बाय dx ऑफ अल्फा रूट x। तो ये आ जाएगा a इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाइड बाय अल्फा, अल्फा स्क्वायर रूट x की डिफरेंशिएशन आप जानते हो 1 बाय 2 रूट x से रूट x कैंसिल, सॉरी ये अल्फा स्क्वायर है नॉट a स्क्वायर, ये यहाँ पे अल्फा स्क्वायर है। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आई, पहले केस में अल्फा डिवाइडेड बाई 2, खत्म। दूसरे में क्या पूछा था, दोबारा v एज अ फंक्शन ऑफ x, a इज इक्वल टू v dv बाई dx लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ a की वैल्यू अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई d बाई dx ऑफ रूट ऑफ x प्लस 1। ठीक है, तो हम जानते हैं ये आ जाएगा x प्लस 1 रूट मल्टीप्लाइड बाई रूट x की डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 रूट x होता है। अब आप बोलेंगे इंटरनल x की भी कर दो, x की विद रेस्पेक्ट x कितना आ जाएगा 1, तो ये कैंसिल, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 बाई 2 कांस्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज मेरे पास vx रिलेशन डायरेक्टली नहीं दिया है, इन्होंने xv रिलेशन दिया है, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, सो आई एम गोइंग टू गेट x एज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एज इक्वल टू v प्लस 1, तो यहाँ से मुझे मिलेगा v एज एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से मेरे पास कौन सा रिलेशन आ गया दोबारा, vx, a will be equal to v dv divided by dx, acceleration will be equal to x square minus 1, अगर इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे so I am going to get 2x। ठीक है, तो इसकी डिफरेंस 1 की तो 0 होगी, so I got a as x square minus 1 into 2x, ये मेरे पास एक्सेलरेशन की रिलेशन आई। सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, v किसका फंक्शन है, v यहाँ पे दोबारा किसका फंक्शन है, दैट इज x का, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा v dv डिवाइडेड बाई dx। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट ऑफ 108x माइनस 9x स्क्वायर मल्टीप्लाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ, इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी इंटरनल डिफरेंशिएशन, वो आप जानते हो रूट की कितनी होती है 1/8x माइनस 9x स्क्वायर, और इसकी इंटरनल डिफरेंशिएशन हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी 108 माइनस 9 टू ज़ा 18। ठीक है, इसको इधर ले आते हैं, तो ये और ये कैंसल, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 18x, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 101/2 रूट, सॉरी 108 माइनस 18x डिवाइडेड बाई 2, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 108 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 18x डिवाइडेड बाई 2, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 54 माइनस 9x। फॉर ऑल दीज क्वेश्चंस, ये जो हमने कैलकुलस के कॉन्सेप्ट्स के लिए, फॉर दिस यू नीड स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा, पहले अब मुझे v लिखना पड़ा क्योंकि v इज अ फंक्शन ऑफ x, तो सारे क्वेश्चंस में वही लिखना पड़ा,
v की वैल्यू पुट कर दी, पहले रूट की डिफरेंशिएशन दैट इज 1/2 रूट x, और फिर एक रूट x के अंदर, रूट के अंदर जो फंक्शन होता है उसका डिफरेंशिएशन होता है 108x की 108, 9x स्क्वायर की हो जाएगी 18x, and I solved it and I got these questions. So in the next video, inshallah, I'll be taking what we call as the integration concept in this calculus method. See you in the next video. Thank you.